Hello everyone, welcome to my channel. So today we are having Sachin sir with us. So hello Sachin sir, how are you? Could you please give me your Yeah, I'm introduction? fine, Amritanjali. Yeah, how are you? Yeah, I am good. So could you please give us your introduction so that our viewer will know about you? Yeah, I joined TCS on 31st 31st July 2019, and as a system engineer. And after that, after working 2 years on TCS, then I uh, tried to switch to different companies. So I applied, like Capgemini, Accenture, Cognizant, and I appeared for interview for Capgemini, and uh, I got selected there. Okay. तो क्या आप हमारे व्यूअर से बता सकते हो कि आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी कैसे मिली सो डैट हमारे व्यूअर को भी कभी लेना हो तो डायरेक्टली ऐसे ये प्रोसेस को फॉलो कर सके? या बिल्कुल बता सकते हैं। कैपजेमिनी के लिए जब मैंने अपना माइंड सेट किया कि नहीं, मेरे को अब ज़रूरत है स्विच करने का, जब सही टाइम आया तो फिर मैं भी लिंक्डइन या फिर naukri.com है, वहाँ से मैं जॉब सर्च करने लगा। वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट आते रहते हैं। लिंक्डइन पे मैं बहुत सारे दोस्तों को फॉलो किया, लोगों को फॉलो किया वहाँ पे। तो वहाँ से फिर हमें कैपजेमिनी का वहाँ पे कैपजेमिनी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी या फिर कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी जाके हम अप्लाई करते थे वहाँ पे। तो कैपजेमिनी से मेरे को कॉल आया एचआर का। उन्होंने फिर इंटरव्यू शेड्यूल किया और मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो बेसिकली लिंक्डइन कैरियर पेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग भी बहुत लोग पूछते हो कि ओपनिंग का कैसे पता चलेगा, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो Yes, yes. यस। LinkedIn is सो very powerful for like finding a job nowadays. So what you can do, you just go on the LinkedIn and start connecting with people. Like you can connect with managers of the other company, you can connect with the HRs of the other company and send them a request. They will accept. And when you are like using LinkedIn, try to try to log in with laptop. So when you log in with laptop, then suppose you are sending a connect, so there is a option, you can add a note there. So just add a note like, hi there, I am this, I am looking for this opportunity. If in your company, or if you know the like the position for this role, so please consider my profile. So you can send them. So by doing this, you will like get a more chance, and to you will get a more chance to connect, or you'll get opportunity for that one. ये सो एक क्वेश्चन मुझे और पूछना था आपसे, जो कि है कि आप क्या अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, जैसे कि इससे हमारे हाँ व्यूअर बिल्कुल। काफी ज्यादा बेनिफिटेड होंगे। जी जी। So for a Capgemini interview, like it was about 30 or 40 minutes. It was not so long. So क्या हुआ था कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मैंने अपना सबसे पहले उस इंटरव्यूअर ने मेरा स्क्रीन शेयर करा लिया। उसके बाद फिर उसने मेरे से मैंने ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए अप्लाई किया था, तो मेरे से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था, जावा विद सिलेनियम। तो मोस्टली मेरे से जावा और सिलेनियम के क्वेश्चंस थे। तो सिलेनियम में फिर अगर आप ऑटोमेशन टेस्टर के लिए अप्लाई करते हो, तो सिलेनियम में कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत कॉमनली यूज होते हैं। तो सबसे पहले मेरे से पूछा था उसने कि हाउ कैन यू हैंडल मल्टीपल विंडोज, like if you are opening or clicking on some link and it is opening in other windows, so how you handle. This was the first question like he started. And after that, like how to handle drop down, how to handle screenshot, how can you take the screenshot like while executing the scripts. And there are lots of questions, like one question was on table, like if you want to traverse a element of a table, then what will be the approach, how can you approach on that one. And then after this type of questions, he switched to a framework, like on which framework you are working. Like could you explain like what you can do, can you design a framework.
So these are the question for which you have to be prepared for that one. And then after that he will ask questions from Java. And he can वो स्क्रीन शेयर है तो वो आपसे कमांड लिखने के लिए भी बोल देगा कि स्क्रीनशॉट लेने का कमांड लिखो, या फिर मल्टीपल विंडो हैंडल करने का कमांड लिखो उस पर। तो ये सब चीज़ें हमसे पूछी गई थी। उसके बाद फिर मेरे से जावा से क्वेश्चन पूछा गया था। जावा में वही उप्स के कॉन्सेप्ट, सारे उप्स के कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस, ओवर फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। तो इसके ये तो पूछेगा ही, फिर इस पे आपसे ये पूछेगा कि इसको आपने अपने प्रोजेक्ट में कहाँ पे यूज किया, कब यूज किया, ऐसा कब सिचुएशन आया जहाँ पे आपने इसको अप्लाई किया। बिकॉज लाइक definition is like all know, like what is this, you can learn the definition from Google, but like how you are using in your project, that is a matter. Okay, so उसने ये सब मेरे से पूछा। और उसके बाद फिर सिलेनियम से मेरे से और भी 2-4 क्वेश्चन थे, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमितान जी को एक मेरे पास है क्वेश्चंस के लिस्ट, तो मैं वो दे दूंगा, आप उससे गो थ्रू होना और उसको प्रिपेयर करना, तो आपका भी क्लियर सकता है इंटरव्यू। दैट इज नॉट अ बिग डील। ये सो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इंटरव्यू किस टाइप से होते हैं। एंड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करना इस इंटरव्यू के बाद। मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी बहुत सारे हमारे व्यूअर, ऐसा हो सकता है कि वो रिसेंटली इंटरव्यू देने वाले हो, तो आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहोगे? मतलब एचआर राउंड ये सब के लिए क्या गाइड करना चाहोगे? क्योंकि उस पर्टिकुलर कंपनी का एचआर राउंड उस पर्टिकुलर कंपनी के टाइप होता होगा, तो ये सब मैं जी पूछना बिल्कुल। चाहती हूँ आपसे। तो सपोज अगर आप SDET के लिए अप्लाई कर रहे हो कैपजेमिनी या फिर किसी भी कंपनी में, तो आपको सिलेनियम के बारे में आपको नॉलेज होना मस्ट है। फ्रेमवर्क, BBD फ्रेमवर्क के बारे में नॉलेज होना मस्ट है। टेस्ट एनजी, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। टेस्ट एनजी में वो आपसे मेरे से ये भी पूछा था कि अगर पैरेलल एग्जीक्यूशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ग्रुप्स का क्या यूज़ है, अगर आपके पास अगर मान लीजिए कि 10 टेस्ट केसेस हैं, उसमें से आप 4 को यूज़ करना चाहते हैं और 4 को नहीं रन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते ही पूछते हैं। फ्रेमवर्क डिजाइन करना आता है कि नहीं आता है। अगर आपने फ्रेमवर्क डिजाइनिंग पे काम नहीं किया है तो डायरेक्ट बोलिए कि नहीं आता है मेरे को, मैंने काम नहीं किया इस पे। अगर आता है तो दैट इज गुड। तो ये सब है टिप्स। और सिलेनियम का एक कोर्स है यूडेमी पे, जावा विद सिलेनियम बाय रोहित शेट्टी सर। So you can go on Udemy and you can watch that video. So he was like a great teacher. ये सो आप लोग जो सर रिसोर्स रिकमेंड करे हैं उसे भी आप फॉलो कर सकते हो, काफी अच्छा रिसोर्स है। एंड कोई ऐसा साइट जो फ्रीली अवेलेबल हो, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? फ्रीली सिलेनियम के लिए बहुत सारे कमांड या फिर जो भी मैं क्वेश्चंस अभी डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा। और लाइक अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या फिर आप इस पे काम कर रहे हो तो आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता होगा, आपने वहाँ पे कैसे, मतलब आपके यहाँ कैसा प्रोजेक्ट है, क्या फ्रेमवर्क है, तो उसके बारे में आप वहाँ पे नॉलेज ले सकते हो। सीनियर से अपने कांटेक्ट कर सकते हो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। और आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है, आप इस रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको फिर दैट उस वीडियो से गो थ्रू होना पड़ेगा। सो जी होपफुली सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सचिन सर फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। सो या थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। So please थैंक यू। subscribe this channel and like this video if you have watched till the end. So that's all. Thank you so much.